बताओ। मैं रोट्रैक्टर कैवर्तक हूँ। मैं डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव हूँ स्पोर्ट्स का। हम आरसीएनएम कॉलेज से है, रोट्रैक क्लब ऑफ एनएम कॉलेज। वी हैव विथ मी, मेरे मेंबर्स है मिस्टर रोट्रैक्टर मानस मेहता और रोट्रैक्टर प्रथम शाह। तो मैं मानस को बोलने का मौका देना चाहता हूँ। So, hello, sir. I am Rotractor Manas Mehta from RCNM Sports. I am a member. And, sir, even I was a javelin thrower before COVID started. So, I hope it will be an interactive session and it will be knowledgeable for others who don't know the sport much. Yes, sir. So, first thing, I had a question that what about the diet that the thrower needs? Because while throwing, we need power, but we need to run, and even the arm power should be there, even with biceps and the wrist, so that we throw. So, what should be the proper diet of a thrower who needs to achieve nationals? Okay, first of all, we need to understand the uh, ability of the athlete, their body structure, and that is why we are inviting Ajita ma'am, who is a physical education expert and a judo national player. So Ajita ma'am will be the better person to tell you that. So what are the requirements athletes require to enhance their performance with right nutrition and right training? Ajita ma'am, can you answer that? Yes, hello. My name is Ajita Sahane, as he rightly introduced you. So, I would like to say that more of a combination of all of it, like carbohydrates, proteins, and fats. These are the three main macronutrients. And majorly, I would tell that protein content should be a little more. And we should also focus on the micronutrients as well. Those are like the vitamins, minerals, and everything. That's it. Shortly, Yeah. I would like to answer. And it is a common practice for the throwers while before they throw they eat chocolate so that they get fats which will help them to get energy while throwing. So is that you which you recommend, or you think like it's no, yes, no, you should have healthy something else? Uh, the thing is that there are many trends which are coming up. So I would rather prefer them eating protein bar, which will boost their energy. So Yeah. to match up with the trend and to go with a healthy option. So Manas, I will take your question. जैसे आप अगर देखते हो ना कि बिफोर परफॉर्मेंस अगर कोई एथलीट कोई पर्टिकुलर फूड इंटेक कर रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टू कॉन्सेंट्रेट एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ देयर बॉडी. ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग लाइक अभी जेवलिन इज अ स्ट्रेंथ मसल, जो उसका स्ट्रेंथ चाहिए होता है उसमें ज्यादा यूज होता है. तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि फोकस करने के लिए व्हाट दे आर ईटिंग, यू मेंशन दैट कि प्रोटीन बार या चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट, राइट? डार्क चॉकलेट कहाँ से बनता है? इट्स अ कॉफी बीन, राइट? कोको पाउडर. Yes. एंड व्हाट कोको पाउडर्स डज इन आवर बॉडी Yeah, it to provides increase energy. our concentration level, Yeah. right? Alert. Similar is like a black coffee. Without sugar black coffee जैसा वर्क करता है वैसे ही कोको पाउडर इन बार, it's called chocolate, it's work for better concentration, right? Yeah. So even if you see the bodybuilder who does the gym, they drink a cup of coffee before their workout. Even athletes, they drink cup of coffee before their performance. So Yeah. it's work like that. Yeah, even I The used to do process it. of stimulating yourself. Yeah, even I used Stimulate to do. yourself. Yeah, it was the best trick to But get the it energy will, before event. correct, but it will help if you are good enough, you have trained your body like that. It will not sudden react your body, क्योंकि उसको अपने बॉडी को कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में परफॉर्म करने के लिए उसको बार बार ट्रेन करना पड़ता है. दैट्स कॉल्ड मसल मेमोरी एंड बॉडी एडेप्टेबिलिटी, राइट? Yeah. इफ योर बॉडी इज नॉट एडॉप्टेड प्रॉपरली दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो भी आप एनर्जन ले रहे हो या व्हाट इज लेमनॉड, bar. Lemonade. प्रोटीन बार, लेमनॉड या एनी प्रोडक्ट यू इफ यू आर टेकिंग, अगर वो आपका बॉडी एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है
then it will be messed up for you at Yeah. that particular time. Yeah. So experimenting is not suggested for any athlete before the competition. At least they have to, take 1 month, 2 months before the competition, so that they know कि हाँ हमारा बॉडी अब ये चीजों को अडॉप्ट करने करेगा या उसके रिजल्ट्स हमने पॉजिटिवली मिलेंगे, राइट? Very true. And moving on to the next question. Who is that one javelin throw which you idolize? कि you see something like कि हाँ इसमें कुछ है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसमें कुछ तो है कि मेरे को भी ऐसे लगता है कि हाँ मेरे को भी अगर मैं थ्रो हो रहा था इसकी उम्र में तो मुझे ऐसा बनना है. You mean to say idol? Yeah, idol. Inspiration, idol. Yeah. So if you seen last Olympic 2021 javelin throw के events देखे आपने सभी ने? एकदम. तो आपने अगर कंपेयर किए होंगे सारे एथलीट्स को, जितने भी मेडल विनर्स होंगे या जिन्होंने फाइनल्स में परफॉर्म किया था, एवरेजली जो नीरज चोपड़ा का बॉडी स्ट्रक्चर है वो बाकी एथलीट से एवरेज है. राइट. बाकी मस्कुलर थे, ज्यादा हाइटेड थे, है ना, ज्यादा उनके अंदर स्ट्रेंथ दिख रहा था. बट थ्रो किसका सबसे ज्यादा गया उस दिन पर? नीरज चोपड़ा का. राइट. एंड नीरज चोपड़ा इज द बेस्ट आइडियल फॉर एवरी जैवलिन थ्रोअर कि उसका फ्लेक्सिबिलिटी का आपने वीडियोस देखा होगा. राइट. वो किस तरीके से बॉल, मेडिसिन बॉल को पीछे लेके आके थ्रो कर रहे थे. तो when it's come to the performance, it's not just the strength, also the flexibility. Yes. Also your body mechanism, how you train your body, right? Yeah. तो नीरज चोपड़ा का जो वो कॉम्बिनेशन था उस दिन, वो फुल फ्लैज उन्होंने यूटिलाइज कर लिया विद द एवरेज बॉडी. नॉर्मली फिल्मों में दिखाया जाता ना कि हाँ मस्कुलर दिख रहा है तो उसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बट एक सीधा साधा हीरो आता है बीच में, फाइटिंग करता है और निकल जाता है. राइट. हमारे इंडिया में भी ऐसा ही है, एवरेज दिखने वाला बंदा भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है इफ दे आर ट्रेन्ड प्रॉपर्ली. If you go and check the past results, like who's the number one, world number one, he is Johannes Vetter from Czech. They have a very good past history. Like they are the ones who are leading in javelin throw since ages. And the second number is the Germans. Yeah. So if you see Johannes also, he had given a kind of challenge to our Neeraj Chopra. Yes, He had said that he is good, but he cannot beat me. That is what his words were. Yeah. But if you see him, he was very much composed and he was very much prepared. So even I would definitely say that I idealize him, Neeraj Chopra, as my inspiration. Yeah. Even as a sports administration in the university, there are many athletes who are inspired by the Neeraj Chopra, not just because he won the gold medal, because of his average personality with the exceptional ability. Mark that point. Very true. He seems average personality, but he has exceptional ability in it because he has developed, he has trained. So now average people can also think of performing at that level, right? Even his stamina. Best person to. Absolutely, absolutely. Sir, as coming to the question only, sir, you said that Neeraj Chopra has obviously inspired crores of Indians. So, sir, what do you think? Has Neeraj Chopra made the sport more popular according to you after bringing gold? Like, what do you think now will be the future of javelin after Neeraj Chopra? Definitely. See, India में ऐसा है ना, जो दिखेगा वो बिकता है. ठीक है. You all are agree with that point, right? Yeah. So before javelin, it was badminton because of Saina Nehwal and PV Sindhu. PV Sindhu won the silver medal. Now every Indian girl child wanted to become a badminton player because of the medal. Now Neeraj Chopra has become a popular personality in the Indian athlete, Indian sports industry, because he performed like that, right? So now javelin and the overall athletic events will be popular in India because now in India
the state administration and the central government administration are working on providing the good facility for the athletic event. पहले हम लोगों को सिंथेटिक ट्रैक देखने नहीं मिलते थे, राइट? हम हाँ, लोग वो मड के ग्राउंड पे भागते थे, मिट्टी में Now, if you भागते see थे। every मट्टी में भागते थे, राइट? शूज नहीं होता था. नाउ इफ यू सी हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक देखने मिलेगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. Actually, we in India we believe कि किसी एक को प्रूव करना पड़ता है वो पर्टिकुलर गेम को, and then we have everyone following rest. Yes, sir. Yes, जान आ जाता Very है. true. Yes, वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं. हमारा कंपटीशन ऐसा ही है. sir. दिखावे में But it हम is भी good. तोड़ने पे आ जाते हैं। हाँ, Now the time we have that kind of athletes जिनके जो पहले बाहर नहीं आते थे, बट उनको इनका परफॉर्मेंस देखने के बाद में नाउ दे आर सडनली कम अप कि सर हमको भी करना है. तो हमको ऐसा लगता है कि अरे यार ये कहाँ छुपा था इतना साल, राइट? उसका एबिलिटी था, हाइट, पर्सनालिटी, मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा था. टैलेंट स्काउट करते वक्त जब टैलेंट को हम सामने से देखेंगे नहीं तब तक कि उसको कैसे बताएंगे कि आप ये स्पोर्ट्स करना चाहिए. घर में ही बैठे रहते. बट बिकॉज ऑफ दिस परफॉर्मेंस लाइव टेलीकास्ट ऑफ द मेगा इवेंट्स लोगों को ज्यादा पता चलने लगा है. नाउ दे आर स्टेपिंग आउट फ्रॉम द होम एंड आस्किंग फॉर द कि हमको भी ये करना है. और हमें ये फैसिलिटी कहाँ मिलेगी? Now coaches are having an opportunity to talent scouting. More options to scout the talent. Yeah. So I have a question. Like, what was that something special that you saw in this sport, or that one driving force which made you choose this particular sport of javelin? Can you repeat the question, please? Yes, sure. What was that something special that you saw in this sport, or that one driving force which made you choose this particular sport? Ajita ma'am, please. Javelin throw में आप क्या अगर किसी टैलेंट को स्काउट करना चाहते हो? No, he is asking what made you choose this sport. Actually, at the age of 14, I started athletic events with the javelin throw and shot put. And whether it is same field event, but the different muscular endurance का जो combination है वो अलग अलग यूज होता है. Shot put में अलग यूज होता है and javelin में अलग यूज होता है. Because of my body structure, I am a metamorph. Yeah. Okay, so I can do the shot put easily. But javelin throw के लिए मेरा जो flexibility है वो यूज नहीं हो रहा था because it's required full back extension with the high force. Right, मेरा lower जो body structure है वो ज्यादा strong था. So I can generate my force by standing position, not the running position. Right, तो मैं shot put को prefer करता था. Javelin मैंने एक साल करके छोड़ दिया, ठीक है. But I am following that क्योंकि passion है. क्योंकि you won't believe before the Olympic, मैं अपने management से बोलता था कि हमको एक मेडल पक्का है. Because I saw नीरज चोपड़ा का जो ability जो पास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने परफॉर्म किया था उसमें जो उनका बॉडी मैकेनिज्म वर्क कर रहा था वो अगर उसी बेस पे अगर वो करेंगे परफॉर्म तो उनको मेडल पक्का था, ये हम श्योर थे. एंड यू वोंट बिलीव बाय द टाइम नीरज चोपड़ा गॉट द गोल्ड हम सब टेंस थे कि हमें एक मेडल नहीं है. एंड एट दैट टाइम आई वाज इन एनआईएस पटियाला जिस टाइम पे नीरज चोपड़ा ने थ्रो फेंका, ठीक है. एवरीवन शाउटेड एंड वी वेंट थ्रू. ओह माय गॉड, नीरज चोपड़ा गॉट द गोल्ड विद द सेम परफॉर्मेंस, सेम उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, जो थ्रोइंग एक्शंस थे, परफेक्टली एक्यूरेटली उनका जो चाहिए था वो उनको मिला था. एंड इट वाज नॉट द लास्ट थ्रो, इट वाज द सेकंड लास्ट थ्रो. सर द कॉन्फिडेंस वाज दैट उसने थ्रो को देखा भी नहीं, उसने हाथ फैला के बोल दिया कि बस अभी गोल्ड मेरा है. सर वो वैसे प्रॉपर एग्जीक्यूशन वैसा था. He didn't even but see. you know that why he didn't see, why he realized before landing the javelin on the floor कि उसका थ्रो अच्छा गया. Can you answer me that? No, right? I will tell you. It's not about the confidence, it's about their body adaptability. जब javelin हाथ से निकलता है ना तब उसको पता चल जाता है एथलीट को कि वो कितना दूर जाने वाला है. It's required the angle and the force which he has already generated.
और उसके बाद उसने जावलिन में ट्रांसफर कर दिया. नाउ इट्स सिमिलर लाइक अ मिसाइल. लाइक मिसाइल को एक बार टक 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 उसको डायरेक्शन दे दिया इस एंगल पे एंड बटन. व्हाट विल डू नाउ? एक बार वो मिसाइल छूट गया, यू कांट डू एनीथिंग, राइट? वो मिसाइल बरोबर जाके टारगेट पे. सिमिलर लाइक अ एथलीट का बॉडी. इसलिए उसने पीछे नहीं देखा, उसको मालूम पड़ गया मैंने मिसाइल छोड़ दिया है. यस सर. और एक बात सर, मैं भी पहले, मेरा भी आपकी जैसा ही है, मैं भी जावलिन किया बट नहीं हो पा रहा, तो मैं पूरा पट पे स्टिक किया. बट एक चीज होता है, पट, जावलिन और डिस्कस, ये तीन में बहुत फर्क होता है, क्योंकि एक बार आप पट और डिस्कस को एक साथ खड़े खड़े फेंक सकते हो, बट कंपेयर टू जावलिन आप उसको दौड़ के ही फेंकना पड़ता है. तो कभी कभी उसमें ये भी होता है, अगर आपका बॉडी जरा भी साथ नहीं दिया, 1 सेकंड के लिए भी मिस हो गया ना, तो आपका पूरा थ्रो खराब हो सकता है. और सर आपका नीरज चोपड़ा वाला बात, उसमें IFF डायमंड में देख रहा था, लाइव देख रहा था मैं, उसमें जब फर्स्ट आया, मैं उसी दिन मेरे दोस्त को बोला कि अगर ये बंदा ऐसे ओलंपिक में फेंकेगा कंफर्म गोल्ड है. और उसका मैं ट्रेनिंग और सब पूरा फॉलो करता था. फिर उसके 1 मंथ पहले, ओलंपिक्स के मंथ पहले, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, देखना अपना इंडिया का 1 गोल्ड पक्का आएगा, वो भी नीरज ही लाएगा, जावलिन में ही लाएगा. तो मैं जिस दिन वो स्पोर्ट हो रहा था, एक्चुअली मैं अपना यूनिवर्सिटी ग्राउंड मरीन लाइन्स वहां पे था, तो मेरा कुछ काम से उधर में आया था. मेरा दोस्त बोलता है, उसका कॉल आया मेरे को, भाई अपना इंडिया का गोल्ड आ गया. मैं तेरे उसको बोला, देख तेरे को डेट करे, मैं इसको साइन करके दिखाया, देख मैं तेरे को इस दिन बोला था कि नीरज चोपड़ा गोल्ड आएगा, और लेके आया. Wow. So you or me were the same point. Give me the high five. तो नीरज चोपड़ा को बहुत पहले से फॉलो किया है. अभी होप कि शॉर्टपुट और डिस्कस में भी कुछ इंडिया में आ गया है, वो उसमें भी गोल्ड है, या एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म करे, तो उसमें भी अगर फेम मिलेगा तो उसमें भी वापस हो सकता है, उसमें भी ग्रोथ हो. कि जितना मैंने फॉलो किया ओलंपिक्स में, मुझे कोई टॉप 8 में कोई नहीं देखा. मैं थ्रो का फॉलो किया, मैं डिस्कस का भी देखा. डिस्कस में ये फीमेल में एक थे, का नाम मैं भूल गया, वो एक थे, बट उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए टॉप 5. करेक्ट. होप सो कि अगले साल भी हम आगे जब भी इवेंट हो, हम लोग उसमें तोड़ दे पूरा. थ्रोइंग में अपने पास बहुत पावर है, कभी भी निकाल सकते हैं. एथलेटिक में हमने फर्स्ट टाइम गोल्ड लिया है, मेडल लिया है. वी कैन नॉट से गोल्ड लिया, मेडल लिया है. ठीक है. नाउ जो भी जो सिनेरियो होगा एथलेटिक का, हर प्लेयर चार्ज अप हो चुका है. ठीक है. तो यू एंड मी कैन बिलीव कि हाँ, इंडिया को अभी एथलेटिक्स में कंटिन्यूसली मेडल आते रहेगा. एंड यू और मी विल सपोर्ट देम, राइट? अगर हम ना एज ए व्यूअर हम उनको फॉलो करते हैं ना, तो एक ऑरा होता है जो हम भी उनकी तरफ थ्रो करते हैं एज ए ऑडियंस. तो वो चार्ज अप रहते हैं हमेशा. वी फॉलो पेज. आपने नीरज चोपड़ा का 10 पेज फॉलो कर लिया आपने, नीरज चोपड़ा के वीडियोस देख रहे हैं, तो क्या होगा? नीरज चोपड़ा को वो फेम मिलता जाएगा, एडवर्टाइजमेंट कंपनी नीरज चोपड़ा को प्रेफर करते जाएंगे, और नीरज चोपड़ा उतना पॉपुलर हो जाएगा इंडिया में कि हर बच्चा उसको देख सके हर जगह पे, राइट? So that's all audience do indirectly with the athletes. यस. तो उसका फ्यूचर हम लोग ही बना सकते हैं ऐसे सपोर्ट से. Yes, Absolutely. yes. See, क्रिकेट कैसा ऊपर आया? सचिन लाइव लाया. टेलीकास्ट होते थे, हाँ. या सचिन आ गए, उसके पहले भी हमने वर्ल्ड कप दादा देखा, थे. लाइव टेलीकास्ट होते हैं. हाँ. हम ही थे जो क्रिकेट को ऊपर लेके आए. ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन डज गुड जॉब ना. अभी हम ही हैं जो बाकी एथलीट्स को ऊपर लेके आएंगे. यस. और सर मेरा ओके और एक क्वेश्चन सर. था. ओके सर, तो बोल रहे. मैं सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा है, इट्स अ फन क्वेश्चन. ओके सर, अकॉर्डिंग टू यू, मैंने अगर आपके प्रेफरेंस से पूछूं, अगर आपको ऐसा कोई एक रूल लगे जो आपको निकालना हो जैवलिन से, मतलब आपको लगता है कि अगर यार ये रूल निकल गया ना तो बहुत मजा आ जाएगा, तो आपको कौन सा रूल या कुछ भी स्ट्रैटेजी एलिमेंट आपके हिसाब से, अगर ये चीज निकल गई तो? मेरे पर्सनल अगर पूछोगे आप, तो मैं रनिंग को बंद कर दूंगा. यू डोंट रन एंड थ्रो, डू स्टैंडिंग थ्रो. ठीक है. आई विल प्रेफर दैट. मैं बोला आपको पहले मेंशन कर चुका कि आई विल डू द थ्रोइंग विद द स्टैंडिंग पोस्चर, नॉट इन द रनिंग पोस्चर. मेरे लिए तो फन एक्टिविटी रहेगा. आई कैन जस्ट पुल माय हैंड एंड थ्रो, वो ज्यादा जाएगा इंस्टेड ऑफ रनिंग एंड थ्रोइंग. So I cannot match my speed and with the throwing actions. तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है, परफॉर्मेंस इन्वॉल्वमेंट है, वो कट डाउन हो जाएगा. सो इन स्टैंडिंग पोजीशन आपके बॉडी में जितना थ्रो एंड फ्लेक्सिबिलिटी आप उतना ही करोगे.
आपको रनिंग जो स्पेस मिलता है उससे आप जनरेट नहीं कर पाओगे फोर्स. सो इट विल बी डिफिकल्ट टास्क फॉर एनीवन थ्रोइंग जैवलिन इन स्टैंडिंग पोजीशन. वो अलग कंपटीशन हो जाएगा. So it will be static explosive power basically. Yeah. And भाग के तो हम लोग किसको भी धक्का मार देते हैं ना. खड़े खड़े धक्का मारो. हाँ, बहुत मुश्किल होता है. Yes. मेरा क्वेश्चन था, कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें पूरा लंबा ब्रेक मिल गया एथलीट्स को, तो उनका जो फिटनेस जो पहले था उनको उसको भी ब्रेक मिल गया, तो उसका फिटनेस भी कम हो गया. फिर अभी वापस अभी धीरे धीरे अभी जियो जैसे रिलायंस का इवेंट होने वाला 25 26 को, तो उसमें थ्रोइंग नहीं है, बट अगर वैसे इवेंट्स अभी चालू हो रहे हैं, तो अभी वापस एथलीट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका वापस वो जो फिटनेस था कोविड एरा के पहले वापस लेके आ सके, एक्सरसाइज हो, डाइट हो, तो क्या कर सकते हैं वो लोग? Correct. So first of all, I would like to mention that the athlete don't wait for event. They train for the event. भले कोविड था, बट वो घर में एटलीस्ट बेसिक एक्सरसाइज करके भी अपना बेसिक एंड्योरेंस, परफॉर्मेंस या स्टैमिना बिल्डअप कर सकते थे. ठीक है. अभी जो एथलीट्स जिन्होंने ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म किया, अब उनके या जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है, वो इसलिए पार्टिसिपेट कर पाए या क्वालिफाइड कर पाए बिकॉज थ्रू आउट दिस पीरियड जो कोविड का सिचुएशन था, उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, वो बैठे नहीं. अगर वो बैठते ना, क्वालिफाइड नहीं करते. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, चलो हमने नहीं भी ट्रेन किया, नाउ वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो आउट ऑन द ग्राउंड एंड ट्रेन आवरसेल्फ. गो विद द बेसिक फर्स्ट. कि आप बेसिक वो चीजों को पहले ट्राई करो कि हाँ, हम लोग अगर थ्रोइंग कर रहे हैं तो हमारा फुट मूवमेंट कैसा जा रहा है. डोंट गो विद अ हायर परफॉर्मेंस. डायरेक्टली आप जाके जैवलिन थ्रो नहीं कर सकते. डायरेक्टली जाके आप शॉर्ट पुट थ्रो नहीं कर सकते बिकॉज यू नो दैट योर शोल्डर इज नॉट ट्रेन इनफ. ठीक है. सडनली करोगे देन अगेन यू विल गेट बैक टू द इंजुरी सिचुएशन में. सो टू अवॉइड इंजुरी, गो स्लो, टेक योर टाइम. अगर आपको टाइम कम है, ठीक है, यू कैन इंक्रीज योर ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रेनिंग. 1.5 आवर कर रहे हैं, you can do it for 2 hours, 2.5 hours, but give proper break. आपने सपोज 3 राउंड के अभी 400 मीटर भाग रहे हैं और आपको मालूम है कि आप 400 मीटर के 10 लैप करेंगे तो योर बॉडी विल बी एग्जॉस्टेड. डू 3 लैप्स, टेक प्रॉपर रेस्ट, रिकवर योरसेल्फ एंड अगेन डू 3 लैप्स ना. उससे क्या होगा, आपका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन बढ़ेगा, लेकिन आपको लैप्स तो उतने ही मारने, राइट. सो इट विल बी अ लाइक less injury situation. Yes. So basically what he's saying is he explained periodization in short. Yeah. It is very important to follow the basics of periodization. Even if it is an athlete who comes out from a transition period. Transition period is the time when there are no competitions. Yeah. So they do not sit even then. They are doing anything, any sport in a playful manner, so that their activity is not stopped and they get that break as well. And then when they come back, they start with a little basics, like more of what you say, strength training and conditioning workout, and little of skill training, and then gradually we increase the skill training. It can be varies from athlete to athlete. Some athletes required at least 1 month to do their body conditioning training to go to the next level. Some required 15 to 20 days. Or some required 6 weeks. तो डिपेंड करता है वो एथलीट का बॉडी एडेप्टेशन कैसा है, उसका मेंटालिटी कैसा है, and what level that athlete is. So athlete must be understand their self realization की वो किस लेवल तक पहुंच सकते हैं. या 20 दिन के बाद ट्रेनिंग कंडीशनिंग करने के बाद में दे कैन परफॉर्म थ्रोइंग इवेंट्स. वो एथलीट पे डिपेंड करता है. एंड डेफिनेटली कोच इज द बेटर पर्सन हु कैन टेल यू कि आप अभी यहाँ से यहाँ तक जाना है. राइट. There should be a specialized plan for each and every athlete. It shouldn't be like सब है तो सबको एक जैसा नहीं ट्रीट कर सकते. Whether is the same event. अगर आप जैवलिन थ्रोअर्स के 5 जैवलिन थ्रोअर्स को लोगे, सबका इंडिविजुअल का एबिलिटी अलग अलग टाइम पे ट्रिगर होता है. That's called trigger point. Yeah. So everyone needs a specialized program and specialized periodization techniques for them as well. Correct. Yeah. So, sir, I have one more question.
एज वी सॉ कि ओलंपिक्स के कारण जेवलिन काफी पॉपुलर हुआ इंडिया में. सो डू यू हैव एनी लाइक सजेशंस फॉर द इंडियन गवर्नमेंट कि वो क्या करे टू मेक पीपल मोर अवेयर ऑफ दिस स्पोर्ट? और नॉट जस्ट द जैवलिन, मैं चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट हर स्पोर्ट को हर इंडिविजुअल तक पहुंचाने की कोशिश करे. ठीक है, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैलेंट. हमारा यार 130 करोड़ का जनसंख्या है. अगर हम लोग 130 करोड़ जनसंख्या के टच भी कर दिया ना, तो उसमें से हमारे पास में 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स निकलेंगे सिर्फ जैवलिन में. हर साल कोई ना कोई नया चैंपियन रेडी हो जाएगा वर्ल्ड चैंपियन में. उसके लिए गवर्नमेंट को मतलब हम सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी पॉलिसीज है. मैं जैसा मेंशन किया हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है, उसके ही आसपास वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाते रहते हैं. यू नो द स्टेट फेडरेशन है ना, उसके बाद में यूथ एंड अफेयर्स मिनिस्ट्री है हमारे पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है. यू हर्ड अबाउट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्रीड़ा प्रबोधिनी स्पोर्ट्स एकेडमी. ओके, जहाँ पर अलग अलग स्पोर्ट्स को ट्रेनिंग देते हैं. सेम विद द साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अब प्रॉब्लम क्या है कि उस एकेडमी में वही एथलीट पहुंच पाते हैं जिनको मालूम होता है कि हाँ यहाँ पे पहुंचने का तरीका ये है. उसका फिजिकल लेटरिन एंट्री होती है जो डायरेक्ट, अगर आप स्टेट या नेशनल खेले होते हैं, मेडल्स होता है, तो कोच, वहाँ के कोच आपको अप्रोच करेंगे कि तुम हमारे एकेडमी में आ जा, हम तुमको सब फ्री देंगे. सेकेंड होता है बैटरी टेस्ट बेस. तो फ्रॉम स्कूल 10 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको एक बैटरी टेस्ट के थ्रू टेस्ट किया जाता है कि इसका एबिलिटी अच्छा है, इसको अगर हम ट्रेन करेंगे तो ये एथलीट बन सकता है. बट वो बैटरी टेस्ट देने के लिए कौन जाता है, ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. अभी आई वॉज इन द स्टेट अकेडमी क्रीड़ा प्रबोधिनी में, बिकॉज ऑफ माई फिजिकल एजुकेशन टीचर was literally enthusiastic to find out the talent from the school. तो उन्होंने देखा कि हम सब इवेंट कर रहे हैं ना, स्कूल में ऐसे 4 बच्चे होते जो सारे इवेंट खेलते हैं. तो फुटबॉल भी खेल, तो बास्केटबॉल भी खेल, यू हैव गुड फिटनेस, ऐसा होता है राइट. तो हम भी वैसे ही थे. बट व्हाट ही डज, उसने बोला कि भाई मेरा काम है तुम्हारे अंदर का टैलेंट देखना, मैं तुमको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं दूंगा, मैं तुमको उस लेवल पे पहुंचाऊंगा जहां पर तुमको अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा. सो ही सेंड अस फॉर द बैटरी टेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. और उन्होंने हमको ट्रेन किया. देयर वो 4 लेवल्स, तालुका लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, एंड देन अगेन एक स्टेट लेवल पर होता है. ठीक है, तो जैसे ही हमारा तालुका लेवल पे सिलेक्शन हो गया, ही डिडंट स्टॉप अस. 5 बजे हम लोगों को फोन करके वो रिंग करते थे कि सुशील ट्रेनिंग का टाइम है, लैंडलाइन पे. कैन यू इमेजिन? नहीं अगर किया ट्रेनिंग, भाई तुमको हम सिलेक्शन के लिए नहीं भेजेंगे. सो उन्होंने एनकरेज किया हमको एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर कि तुम अभी थोड़ा मेहनत कर लो, वंस यू गो टू द एकेडमी वो आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग देंगे. तो ऐसे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का एक रोल है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल से बच्चे, हर बच्चा स्कूल जाता है मोस्टली, रूरल एरिया को छोड़ दिया जाए तो सबर्ब एंड सिटी में तो हर बच्चा स्कूल जाता है. हर स्कूल में मिनिमम से मिनिमम 800 से 1500 का स्ट्रेंथ होता है बच्चों का. ठीक है, अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर चाहे तो ऐसे बच्चों को ट्रेन करके ऐसे एकेडमीज में भेज सकता है, या तो फिर गवर्नमेंट ऐसे कुछ कमिटीज को अपॉइंट करे जो हर स्कूल्स में जाए, वहां से टैलेंट को स्काउट करे. देन वी विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू टैलेंट, रियल टैलेंट स्काउटिंग. आपको पता नहीं चलेगा, यू नो, देन वी आर गिविंग द सिलेक्शन फॉर द एकेडमी. साल भर मेहनत करने के बाद में 800 मीटर का टाइमिंग वाज 3.15 मिनट्स. ओके, एंड सडनली गढ़चिरौली का बच्चा आता है एंड हिज टाइमिंग वाज 2.10. कैन यू इमेजिन? तो दैट्स अ टैलेंट स्काउटिंग. तो आपको गढ़चिरौली वाला बच्चा मिल रहा है जो ऑलरेडी 2.110 पे भाग रहा है, और हम साल भर मेहनत करके भी 3.15 पे भाग रहे हैं. तो वैसे बच्चों को ढूंढना जरूरी है गवर्नमेंट को कि वो जगह जगह जाए एंड
Sir, you're not. I guess there is some internet issue. There are some network issues. ये अभी कंक्लूड ही कर दे उसके बाद. हाँ. इंटरनेट इशू. No problem, sir. It's okay. Yeah, sir. तो आप गवर्नमेंट का एक ही होना चाहिए कि कमेटी फॉर्म करे और वो हर डिस्ट्रिक्ट के हर रूरल एरिया से टैलेंट को स्काउट करे. Okay, sir. धोनी मूवी राइट. धोनी मूवी में हाँ. क्या करता है ना, दे मेक अ कमेटी और वो हर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाके टैलेंट स्काउट करते हैं. दैट्स व्हाई धोनी बिकम अ धोनी. Yes. Yes. Yes, so your words were very true. ये सब करना चाहिए ताकि हमारे जो यूथ है उसमें भी स्पोर्ट्स का अगर ऊपर से पेरेंट्स को भी समझ में आए कि हाँ कि हम बच्चे को भी करना चाहिए. यूजुअली बच्चों को क्या तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन, तू कॉमर्स कर, ये कर, सीए बन, ये होता है. बट अभी हम लोग के पेरेंट्स को भी क्या है कि हाँ तू स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट्स में मेडल चाहिए पर स्पोर्ट्स का करने नहीं देते. वैसा हो गया है. तो कि ये सब पॉलिसीज हो गए ना, पेरेंट्स भी हो कि हाँ भाई तू स्पोर्ट्स कर, तू मेडल लाएगा, तू भी ये सपोर्ट करे. सो होप सो ये भी थोड़ा जल्दी टाइम आएगा कि हाँ पेरेंट्स अभी बोलेंगे हाँ तू जा ट्रेनिंग करने जा, घर पे इधर पढ़ाई मत कर, तू भी जा ट्रेनिंग कर. तो होप कि वैसा भी टाइम आएगा. और जब वो टाइम आ चुका है मनस, अगर हम लोग देखेंगे ना अभी वो टाइम आ चुका है. बिकॉज जो करियर अपॉर्चुनिटी है ना, बेसिकली देखो कैसा है, ये जो इंजीनियर, सीए, सीएस, जो भी अभी जो ट्रेंड चल रहा था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. अभी चल रहा है साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बनना है, रिसर्चर बनना है, ये ज्यादा चल रहा है अभी के. अगर आप एकेडमिक सर्च, अगर इंजन सर्च करोगे तो उसमें पता चलेगा कि ये ज्यादा सर्च हो रहा है. ठीक है. प्रॉब्लम इतना ही है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड एजुकेशन बहुत कम था. बट ड्यू टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने स्पोर्ट्स प्रोग्राम को अडॉप्ट किया है. जैसा हमने यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में बीएससी इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस का डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया, जहां पर किसी भी स्ट्रीम से बच्चे आकर एग्जाम देकर वो एनरोल कर सकते हैं उस प्रोग्राम में. सो इसके पहले डिग्री के बाद में ही बीपीएड का ऑप्शन था जहां पर आप करियर कर सकते हैं. यू कैन बिकम अ स्कूल टीचर या स्पोर्ट्स डायरेक्टर, फैकल्टी. नाउ आफ्टर 12th you can get the degree from the sports exercise science and you can become a scientist. तुम बहुत सारे स्पोर्ट्स में करियर कर सकते हो. इफ यू सीन दैट नीरज चोपड़ा के पीछे नीरज चोपड़ा का मेहनत है, उसके साथ साथ उसकी पूरी टीम का मेहनत है. उसके पीछे फिजियो होते हैं. यू नो दैट उसका एल्बो का इंजरी हुआ था के भागते हैं. हाँ, आई थिंक 1 साल पहले ही ओलंपिक से. बट वो इतना फास्ट रिकवर क्यों कर पाया? बिकॉज़ 2019 was injured. So that time we were worried कि ये कैसा होगा. But we know the process of their support. कि उनके पास में फिजियोस है, साइंटिस्ट है, एनालिसिस्ट है कि वो कैसे रिकवर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, और उन्होंने करके दिखाया. तो अभी हर एथलीट को कम से कम 6 to 7 का स्टाफ लगेगा ही लगेगा अगर उसको वो लेवल पर जाना है. So their careers comes up. So you can go for the medical sports science degree, you can go for the sports coaching degree. बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ गए अभी इंडिया में. अभी आपके पेरेंट्स ऐसा नहीं बोलेंगे हाँ, पर फिर भी बच्चों को कन्विंस करना पड़ेगा. So you should have a good convince power. Yes, and मतलब ऐसा जरूरी नहीं है इन सारे फील्ड में कि उसमें ये जरूरी है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन होना जरूरी है. अगर स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बनना है ना आपको, तो आप चीजों को अच्छे से तब अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर आप खुद एक एथलीट रह चुके हो. At least not professionally, but at least somewhere you have played any sport.
Yeah. to कि आपने जैसा आप understand. बोल रहे हो कि आपने जेवलिन भले ही हाई लेवल पे स्टेट या नेशनल लेवल पे नहीं किया होगा, बट यू आर फॉलोइंग javelin throwers Yeah. around the world. Yes, मैं स्टेट Right? लेवल का Because you थ्रोअर have है, a पड passion. थ्रोअर है. Wow, wow, Nice. great. So अभी- you have, you know, big knowledge, big experience in athletic event. Yeah. तो ऐसे ही ना थोड़ा भी पैशन होगा ना, एंड अभी का ट्रेंड ऐसा है कि बाय द टाइम जब हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा जाते हैं, वी आर सर्चिंग फॉर द फिटनेस ट्रेनर. कहाँ है भाई, चलो ले लो 10,000 ले